ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे. तो कल हमने क्या किया था? वी सॉ दैट फॉर वी सॉ दैट फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर mu, which is the parameter mean of the population, the estimator is x bar. This is the estimator. And then we saw this is a point estimator, and we also know what is confidence interval. So we saw that this interval x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n to x bar plus z alpha by 2 sigma by square root of n. This interval is such that probability that your mu belongs to this interval is equal to 1 minus alpha. Okay, therefore it is alpha 1 minus alpha into 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल. ये कल किया था हमने. इसका क्या मतलब है? देखो, इस चैप्टर में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिडिक्टिंग. फॉर एग्जांपल वी वांट टू हैव एन एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू. तो एक तो ये चीज है कि आप सैंपल उठाओ, उसका मीन ले लो, पॉइंट एस्टिमेटर मिल गया आपको. बट पॉइंट एस्टिमेशन इन दिस सेंस इज नॉट गुड. प्रोबेबिलिटी जब हम कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन वी गो फॉर इंटरवल एस्टिमेशन. इंटरवल एस्टिमेशन में वी फाइंड आउट एन इंटरवल and we say that probability that your estimate the parameter which you want to estimate, that is mu, belongs to this interval is this much. That gives you confidence intervals. Is that okay beta? So for example let us just look at one problem. तो ये वाली आपके पास you have this problem. The average zinc concentration recovered from a sample of measurements taken in 36 different locations in a river is found to be 2.6 grams per milliliter. Find the 95% and 99% confidence interval for mean zinc concentration in the river. Assume that the population standard deviation is equal to 0.3 gram per milliliter. Now look at this problem beta. इसमें क्या है? You are collecting samples from 36 places in a river, and out of those samples you are finding out how much is the zinc concentration per milliliter of the water. Okay, now you have to comment on the zinc concentration in the river in general. Okay, so this kind of analysis is required. For example these days we have this clean Ganga project, right? तो उसमें if somebody is claiming कि नहीं भी गंगा clean हो गई है, तो he or she will give a hypothesis कि गंगा में कितने परसेंट डर्ट है. मान लो सपोज जिंक कंसंट्रेशन इज योर अनवांटेड थिंग, राइट? सो यू वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट what is the concentration of zinc in the river water. Now क्योंकि river is too big, you have to collect samples from different places. So the only information you have is from the samples. Now you want to make a prediction about the actual zinc concentration in the river.
ओके तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बताओ. कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मतलब वी आर कॉन्फिडेंट 95% confident that the zinc concentration is in this interval. Then you can go for a further interval. We are 99% confident that your zinc concentration which is there in the river is in this interval. That kind of analysis वो क्या होगा? For example, every month you are giving that interval. So you are looking for a better and better, like reduced value of zinc. If you are getting that, it means that your project is working. If you are not getting that, it means that your project is not working. Because ultimately जो reports बनानी है, उसमें you should have some solid mathematics, right? Like we can claim anything, but to support you should have data, right? Plus analysis. Is that okay बेटा? तो ये कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखिए. So we are looking for 95% confidence interval. So what is your, it means that 1 minus alpha is 95%, that is 0.95. Is that okay? So alpha की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 minus 0.95, that is 0.05. Okay, so interval will be, interval क्या होगा? x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n comma x bar plus z alpha by 2. ये हमने कल फाइंड किया था. दिस इज द इंटरवल. आपको याद रखना है, यूज करना है डायरेक्टली. ओके, नाउ व्हाट इज x bar? x bar is the sample mean. What is the sample mean? 2.6. This is the information you got from the sample. So this is 2.6 and this value minus z 0.0 alpha by 2 क्या हो जाएगा? 0.025. sigma is your 0.3 divided by square root of n. What is n? सैंपल साइज. कितना सैंपल कलेक्ट किया यहाँ पे? 36. इज दैट ओके बेटा? ये क्लियर है सबको? नाउ फ्रॉम वेयर विल यू गेट दिस वैल्यू? फ्रॉम द टेबल z alpha. ठीक है, so you'll get this value from the table. Value from table. So I'll just write it here. It is 1.96. So you get your interval as 1.96. put कर दीजिए 2.50 to 2.70. So this is your 95% confidence interval. Okay, so depending on the data which you collected, the sample, you are making this prediction that I am 95% sure कि इस interval के बीच में zinc concentration of the river water will lie. Okay, and now you can go for the next one which is 99%. That will be for 99% क्या होगा? बाकी everything else will be same. 1 minus alpha will be 0.99. So your alpha value will be 1 minus 0.99, that is 0.01. So your interval becomes x bar minus, x bar आपका वही रहेगा 2.6. ये इसी में वैल्यूज पुट कर रही हूँ बेटा. 2.6 माइनस ये क्या बन जाएगा? z 0.005, राइट? इसका हाफ हो जाएगा. ओके, इंटू 0.3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 कॉमा 2.6 प्लस z 0.005 times 0.3 over square root of 36. Look for the value again from the table. So its value is 2.575. So you get your interval as 2.47 to 2.73. So this is your 99% confidence interval. Okay, so now you can see, look at the intervals. Obviously the 99% confidence interval is bigger. So what kind of intervals we are looking for? We are looking for intervals which are not that big. Suppose अगर ये बन जाता 2 to 3, then we definitely go for this interval. 95% surety in a smaller interval is better than 99% surety in a very bigger interval. Because if you are saying that your mean, anyway we know that mean will be some number between minus infinity to infinity. So we are 100% confident that the mean value will be between minus infinity to infinity, but that does not give any information, right? So we don't want कि बस confidence level ही आई हो, we also want कि interval भी छोटा हो. So there is a trade off. Is that okay बेटा? पॉपुलेशन की, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली बेटा, यही तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब मीन ही नहीं पता तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पता होगा. तो फिर हमने किया ना केस नेक्स्ट कि व्हेन मीन इज नॉट नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, तो व्हाट वी डू, वी रिप्लेस z डिस्ट्रीब्यूशन विद t डिस्ट्रीब्यूशन.
लास्ट चैप्टर में हमने करा है ना कि सबसे पहला जो CLT तब लगता है व्हेन यू एज्यूम कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन पता है, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड prediction, like assumption, because we don't know about population. Then we go for T distribution. हमने पढ़ा है कि when if I have this thing x bar minus mu over s upon square root of n, याद है, this is T distribution. इसमें s क्या है, सैंपल का वेरिएंस. x bar minus mu over sigma by n is your z distribution. ओके, फिर वहां टी आ जाएगा, अभी करवाऊंगी वो भी. ओके, तो कल मैंने एज्यूम किया था कि मुझे पॉपुलेशन मीन पता है, सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरवल. ओके, इज दैट ओके? so let me write down here. This is the formula for interval when population variance is known. Okay beta, and we can see that in large samples, when your sample size is very large, उस केस में क्या होता है, स्ट्रेट अवे यू कैन रिप्लेस सिग्मा विद योर एस, क्योंकि सैंपल तो है ही ना आपके पास, सैंपल का तो निकल जाएगा ना वेरिएंस, तो उस केस में टी पे भी नहीं जाते लोग, वो भी मैं लिखवाऊंगी. ओके, उसमें क्या करते हैं, वी यहाँ पे ही बस सिग्मा की जगह पे एस लिख देते हैं व्हेन योर सैंपल इज वेरी बिग. ओके, क्योंकि मोर देन 30 के लिए हमें पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, बट मान लो आपका सैंपल साइज 1000 है, देन यू कैन रिप्लेस सिग्मा विद एस. इज दैट ओके बेटा? Okay, so we have this situation. Now we have this situation. This is your sample जिसको आपने you got your interval x bar is at the center. So ये point है x bar plus z alpha by 2 sigma by square root of n, and this point is x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n. तो mu will be somewhere here, है ना, आप यही क्लेम कर रहे हो ना कि mu इस इंटरवल के बीच में होगा. So this is point estimated, इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर. ऑलरेडी आई टोल्ड यू द डेफिनेशंस यस्टरडे ऑफ म्यू, एंड दिस होल इंटरवल इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ म्यू. क्लियर है ना बेटा ये चीज? सो इसमें इंटरवल एस्टिमेशन में कितना एरर आया वो ऑलरेडी आ गया पिक्चर में, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द इंटरवल इन दैट वे. इफ वी आर सेइंग दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट, तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट 5% कॉन्फिडेंट, तो एरर इन अ सेंस वहां पे ऑलरेडी आ गया. So what is the error here? What is the maximum value of x bar minus mu? Can you tell me beta? Point estimators में maximum value कितनी होगी? mu कहीं पे होगा इस interval में, तो maximum value will be this length. So how much is this length? This much ना? So maximum value of this error is z alpha by 2 sigma by square root of n. Okay? इज दैट थिंग क्लियर? कि पॉइंट एस्टिमेटर्स में क्योंकि आपके पास इंटरवल भी है कॉन्फिडेंस वाला, तो आपको पता है कि म्यू इसके बीच में होगा, दैट आल्सो विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 95%. तो जो पॉइंट एस्टिमेटर्स में एरर होगा दैट विल बी एट द मैक्स z alpha by 2 sigma by square root of n. ओके, सो दिस रिजल्ट टेल्स यू कि कई बार सपोज आपने एनए में बाइसेक्शन पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? उसमें हम करते थे कि कितनी कैलकुलेशंस करें, कितनी आइटरेशंस करें सो दैट आवर एरर इज लेस देन दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड. करा था ना? यू हैड अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट योर एरर इनटू नंबर ऑफ आइटरेशंस, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, आपने सैंपल कलेक्ट करने हैं, बट यू वांट कि योर फाइनल एरर शुड बी लेस देन दिस मच. तो डिपेंडिंग ऑन, हमें ये तो पता है कि इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंपल्स वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट, है ना, बट कितना बढ़ाएं that depends on ki how much error you can tolerate. Okay, so we have this result. If E is the error, then we have E is equal to z alpha by 2 sigma by square root of n. Although this is the maximum value, but इसको equate करके यहाँ से you'll get n is equal to z alpha by 2 sigma by E square. So this result helps you to calculate the number of samples which you should use if you want your error to be less than E.
Okay, so this tells you the minimum number of samples to be used. ये वाला फॉर्मूला आपको ये चीज बताता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव हाउ लार्ज a sample is required if we want to be 95% confident that our estimate of mu in the last example, जो भी हमने करी है बेटा, is of, in the last example is off by less than 0.05. इसका क्या मतलब है कि जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में एस्टिमेशन निकाला है म्यू का, उसमें मैक्सिमम आप इतना दूर होने चाहिए म्यू से 0.05. सो दिस इज योर एरर. ओके, सो यू वांट टू टेल नंबर ऑफ टर्म्स, so that will be z alpha by 2 sigma by error is 0.05. what is z alpha by 2 बेटा? यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब z 0.025 इंटू सिग्मा इज, सिग्मा कितनी थी वैल्यू? 0.3 over 0.05, इसका होल स्क्वायर. this, put this value also, it was 1.96, so you'll get 138.3. so it means that at least 139 samples. if you want your error to be less than 0.05, you should choose at least 139 samples. Does that make sense बेटा? तो ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं टू एक्चुअली गेट द थिंग्स वी वांट, कि कितने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं आपने. ठीक है, सो इसके बाद वी कैन गो इनटू मोर डिटेल्स कि कहाँ से करने हैं, उसका भी एनालिसिस होता है, बट राइट नाउ वी विल नॉट गो इनटू दैट. डज दैट मेक सेंस? समझ में आ रहा है बेटा ये? ओके, सो नाउ ये वी हैव दिस इंटरवल x bar minus z alpha by 2 sigma by square root of n to x bar plus z alpha by 2 sigma by square root of n. ये आपका, इसको बोलते हैं, ये आपका इंटरवल है. एंड समटाइम्स we are only interested in one-sided confidence bounds. Sometimes we are interested in only one-sided confidence bounds. इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि जैसे अभी हमने देखा था ना कि म्यू शुड बिलोंग टू एन इंटरवल. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट म्यू शुड बी लेस देन some number. Okay, so I am interested only in the upper bound. I want probability of mu should be less than some number is equal to 1 minus alpha. This is what I want. Okay, इस केस में this is called upper one sided bound. कि sometimes you are not interested in an interval, you are interested in a bound. Okay, तो ये कैसे आएगा बेटा? ये कहाँ से आएगी वैल्यू? So you know that x bar minus mu over sigma by square root of n is normal distribution. So if you make a graph, so what you are looking for? If this is alpha, okay, this region is alpha, this will be z alpha. So you are looking for this region beta, because you want your probability to be 1 minus alpha. तो पिछली बार हमने दोनों टेल्स कट की थी, अब ये एक साइड की टेल बस कट करनी है आपने, राइट? Is that okay? So we are looking for this region, right? So we know that probability that z is less than z alpha is equal to 1 minus alpha. यहाँ से probability z की वैल्यू पुट कीजिए, this is z, right? x bar minus mu over sigma by is less than z alpha, तो is equal to 1 minus alpha. यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? उल्टा आएगा यहाँ से ना, यहाँ से आ जाएगा probability that mu is greater than x bar, greater आएगा ना, minus z alpha by into sigma by square root of. लोअर बाउंड आ गया ये,
ठीक है। अगर हम ये वाला करेंगे, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ओके, दिस इज योर माइनस जेड अल्फा, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन माइनस जेड अल्फा, दैट विल बी ऑल्सो 1 माइनस अल्फा, है ना बेटा, सिमेट्री से। सो यहां से you'll get probability x bar minus mu over sigma by square root of n greater than minus z alpha is 1 minus alpha. तो यहां से you'll get probability that your mu is less than z x bar plus z alpha sigma by square root of n is 1 minus alpha. Now you have these two results बेटा. तो ये आ गया आपका वन साइडेड लोअर बाउंड. क्या फर्क है इसमें और इंटरवल वाले बाउंड में? वहां पे z अल्फा बाई 2 था, है ना, क्योंकि दोनों टेल्स आपने कट करी थी ना, तो वहां पे यहाँ पे z अल्फा बाई 2 था. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरवल यू विल गेट x बार माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ n, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे. एंड नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरवल, यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द वन साइड बाउंड्स, ईदर लेस देन और ग्रेटर देन. तो आपका z अल्फा रिप्लेस हो जाएगा, z अल्फा बाई 2 रिप्लेस हो जाएगा z अल्फा. इज दैट ओके? सो लेट मी राइट डाउन दिस रिजल्ट. प्रूफ नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है, बट आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए. सो वी हैव दिस थिंग, प्रूफ मतलब जो इस चैप्टर के, ओनली इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हम हरिडली कर रहे हैं. सो वी हैव दिस रिजल्ट, वन साइडेड कॉन्फिडेंस बाउंड्स, okay, so they are upper one sided bound is x bar plus z alpha sigma by square root of n, lower one sided bound is x bar minus z alpha sigma by square root of n. ध्यान रखना है अल्फा बाय 2 नहीं यूज करना, ओके. जैसे इन द लास्ट एग्जाम्पल, in the last example, for 95% confidence, अपर वन साइडेड बाउंड क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी x बार प्लस z.05 पूरा इंटू सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड लोअर वन साइडेड बाउंड क्या हो जाएगा, x बार माइनस z.05 सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. मतलब हमने यहाँ डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, ओके. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इफ दिस नंबर इज से अल्फा, प्रोबेबिलिटी दैट म्यू इज लेस देन, इज अल्फा मत, अल्फा तो हम यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट, इसको क्या बोलो, p बोल दो, प्रोबेबिलिटी दैट म्यू इज लेस देन इक्वल टू p इज इक्वल टू 0.95, ओके, यही मतलब है ना. एंड यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको मैं कुछ और क्यों बोल रही हूँ, ऑलरेडी इसका नाम है ना, थीटा u. एंड प्रोबेबिलिटी दैट म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा l, दिस इज योर थीटा l इज 0.95. ये मतलब है कि आपने लास्ट टाइम पे इंटरवल्स निकाले थे, अभी आपने इंटरवल्स नहीं निकाले, आपने बाउंड्स निकाले हैं, ओनली वन साइडेड बाउंड्स, ओके बेटा. Now next is your case when theta is sigma is not known. Next, when sigma is, क्योंकि this is the case most of the times, not known, in that case what you will do, you will have this, in that case क्या है हमारे पास, we know x bar minus mu upon sigma, sigma की जगह पे s over square root of n has t distribution with n minus 1 degree of freedom. ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कर लिया है. वेयर s is what, सैंपल वेरिएंस, मतलब सैंपल से निकालोगे आप. तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा आपका, सेम कॉन्फिडेंस बाउंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, 100% कॉन्फिडेंस रीजन विल बी, कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी, सेम डेरिवेशन है, इट विल बी x बार माइनस, अभी t अल्फा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि t डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब टेबल आपने t का यूज करना है बस,
उससे पहले अगर सिग्मा है तो वो z डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने z का टेबल यूज करना है. ओके, 2x bar plus t alpha by 2 s by square root of n. Is that thing clear? And one sided, again same story, upper bound will be this x bar plus t alpha हो जाएगा, alpha by 2 नहीं alpha, s by square root of n, and one sided lower bound would be x bar minus t alpha s by square root of n. सेम जो हमने पहले किया है, सेम एनालिसिस. द ओनली थिंग इज z विल बी रिप्लेस्ड बाय t. तो यू शुड नो कि जब भी आपके पास सिग्मा नहीं पता है, यू विल यूज t डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ z डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी कह रहे हो आप, या इसकी बात कर रहे हो? आप टी और जेड और टी को नहीं कंपेयर कर रहे, बस ये पूछ रहे हो कि वन साइडेड बाउंड क्यों चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना बेटा. यहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर कि आपका म्यू जो है वो इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड है, प्लस अ प्रोबेबिलिटी. नाउ यू आर लुकिंग फॉर म्यू इज लेस देन जस्ट अ नंबर, तो प्रोबेबिलिटी आपकी और प्रोबेबिलिटी आप सेम रख रहे हो, तो बाउंड चेंज होगा ना बेटा. कौन सा? देखिए आप क्या कर रहे हो, एक मिनट. दीज आर द थ्री सिचुएशंस. पहली सिचुएशन में यू वांट थीटा एल थीटा यू, अल्फा सेम है, यू वांट दिस एरिया टू बी 1 माइनस अल्फा. ठीक है. दूसरी सिचुएशन में दिस इज योर थीटा यू, ये चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं है. ठीक है. यू वांट दिस एरिया टू बी 1 माइनस अल्फा, आपने अल्फा सेम रखा है तो इसको शिफ्ट होना पड़ेगा ना बेटा, होना पड़ेगा ना. ठीक है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती ये दोनों चीजें कि पहले ये वाला एरिया भी 1 माइनस अल्फा हो और ये वाला हटा भी तो भी 1 माइनस अल्फा. तो अगर आप कंडीशन सेम रख रहे हो, अल्फा को सेम रख रहे हो, तो बाउंड चेंज होगा, राइट. थर्ड सिचुएशन में यू वांट दिस थिंग, यू वांट थीटा ग्रेटर देन, मतलब ये वाला एरिया टू बी 1 माइनस अल्फा. ओके, दैट इज योर लोअर बाउंड, बट दे आर नॉट सेम. दिस, इसको मुझे कुछ और बोल दो, इस पे 1 लगा दो साथ में. So these and this, they are not same. This and this, they are not same. Okay, is that thing clear? Okay, रिपीट कर लेते हैं. देखिए पहली बार में आप क्या देख रहे हो बेटा, पहली बार में when you are looking for interval, okay, it means that you want your mu to be like this. ऐसा ढूंढ रहे हो आप कि इसमें प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. तो मैंने बोला कि हमें पता है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमें पता है. तो यहां से आपके पास क्या आएगा कि अगर मुझे ये चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये इसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1. तो अगर ये वाला एरिया अल्फा है, इसका नाम क्या है, z अल्फा, ये नोटेशन हमें पता है. और अगर z अल्फा बाय 2, क्योंकि मुझे अल्फा बाय 2 इधर ले लूंगी, मैं अल्फा बाय 2 इधर ले लूंगी. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस जेड अल्फा बाय 2. तो ये वाला एरिया कितना बचा, कल जो हमने डेरिवेशन की है, ये वाला एरिया कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, है ना. हमें 1 माइनस अल्फा चाहिए, मतलब अल्फा बाय 2 इधर छोड़ो, अल्फा बाय 2 उधर छोड़ो एरिया. ओके, तो इसका मतलब दिस इज द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर, राइट बेटा. ओके, तो यहां से इसमें जब x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, बिकॉज दिस इज योर z, ओके, ये वाली डालोगे वैल्यू तो यू विल गेट दैट इंटरवल. तो इसलिए यहाँ पे आपका अल्फा बाय 2 आ रहा है. ओके, यहाँ अल्फा बाय 2 आ गया ना बेटा, क्योंकि दोनों साइड पे आपने अल्फा बाय 2 छोड़ा है. ओके, बट बीच वाला चाहिए हमें. अब जब आप वन साइडेड की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर सेइंग आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन अ वैल्यू such that probability of mu less than that value is 1 minus alpha, उस केस में अगेन विल गो टू z विच इज x बार माइनस म्यू ओवर उल्टा जाओ, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. इसके पास हम गए, देन आई वांट माई दैट थीटा शुड बी, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर,
राइट, कि ये वाला जो पूरा वैल्यू होना चाहिए वो 1 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो राइट साइड पे सिर्फ अल्फा छोड़ेंगे अब, क्योंकि लेफ्ट वहां पे छोड़ना अल्फा ही था, बट लेफ्ट और राइट दोनों पे छोड़ना था, तो अल्फा बाय टू छोड़ा क्योंकि सिमेट्री है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही साइड पे ऑप्शन है तो वो पूरा अल्फा छोड़ेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी जेड अल्फा। इसलिए जब वन साइडेड बाउंड्स निकाल रहे हो यू विल गेट जेड अल्फा, एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग द इंटरवल, इसका मतलब दोनों साइड से उसको बाउंड कर रहे हो, देन यू विल गेट जेड अल्फा बाय थीटा। हाँ, थीटा एल के लिए भी सेम होगा। एक्चुअली यहाँ से थीटा एल आता है, दूसरी साइड से थीटा यू आता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, सेम है। बस आपने ये याद रखना है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्योंकि दोनों साइड से फिक्स कर रहे हैं, तो अल्फा बाय टू इधर छोड़ा, अल्फा बाय टू इधर छोड़ा, इसलिए जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू यूज हो रही है। और जब वन साइडेड निकाल रहे हैं तो एक साइड पे आपने अल्फा टेल छोड़ी है, तो इसलिए जेड अल्फा यूज हो रहा है। ओके, is this thing clear beta? Okay, let us do one problem. The contents of seven similar containers. I will recommend कि नेक्स्ट वीक क्लासेस लगाना बेटा, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत सिंपल है, बट अगर खुद से पढ़ोगे ना आप तो आपको समझ में नहीं आएगा, और क्लासेस नहीं लगेंगी तो मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाऊंगी, ठीक है, तो क्लासेस लगाने आना। सो द कंटेंट्स ऑफ 7 सिमिलर कंटेनर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड are 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 and 9.6 liters. Find a 95% confidence interval for the mean content of all such containers. Assuming an approximately normal distribution. Now look at this problem बेटा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर्स हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है मान लो, और सब में कंटेंट है, एंड यू वांट टू कमेंट ऑन व्हाट इज द मीन कंटेंट इन ईच कंटेनर। तो वो कैसे निकलेगा, सबका मेजर करो और एवरेज ले लो, बट बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट, तो हमने क्या किया, 7 बॉटल्स उठाई और उसका कंटेंट मेजर किया, राइट। Now we have sample data. Now we want to get a 95% confidence interval about the mean of that जो भी सारे कंटेनर्स हैं उनकी मीन वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। अब इसमें पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, देन वी विल गो फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट ओके बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन का वेरिएंस इज नॉट गिवन, सो यू नोट दैट सिंस सिग्मा इज नॉट गिवन, so we get x bar minus mu over s by square root of n is t distributed with degrees of freedom कितनी, हाँ n minus 1, n क्या है सैंपल साइज, वो कितना है यहाँ पे 7, तो 6। तो आपने जब t डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल देखना है तो कौन सी रो देखोगे, 6th रो, लेफ्ट साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है ना। ओके, सो अभी हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, बताइए फटाफट, अभी लिखा था ना, एक्स बार माइनस टी अल्फा बाय 2, ओके, एस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन टू एक्स बार प्लस टी अल्फा बाय 2 एस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? ओके, नाउ व्हाट इज एक्स बार, कैसे निकलेगा, सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 7, कैन यू डू दैट, राइट। तो ये आएगा आपके पास 10.0। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, कई बार आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें दिया होगा मीन और वेरिएंस सैंपल का,
कई बार आपको डेटा दिया होगा तो आपने मीन और वेरिएंस निकालने की भी प्रैक्टिस करनी है. यू शुड नो कि मीन और वेरिएंस कैसे निकलेगा. और इसका एस कैसे निकलेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस. xi माइनस जो भी इसका मीन आया है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच n minus 1. You have to take care of this thing. n minus 1 से डिवाइड करना है, n से नहीं डिवाइड करना. ओके, माइनस दिस वैल्यू विल बी t. अल्फा कितना लेना है 95%, मतलब अल्फा कितना है 0.05, तो ये हो जाएगा 0.025. ओके, इंटू एस निकाल लेना 0.283 आ रहा है, निकालना है ये आपने फॉर्मूला यूज कर. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू 10 प्लस t 0.025 0.283 divided by square root of 7. क्लियर है ना बेटा सबको. ओके, सो नाउ यू पुट दीज वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. सिमेट्रिक होता है टी सिमेट्रिक होता है, ठीक है. काई स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं है, तो ये आएगी वैल्यू आपकी 2.447. कर लेना. तो आपका इंटरवल आ रहा है 9.74 से लेके 10.26. So we are 95% confident that the containers जो भी है उनका जो मीन होगा that will lie in this number in this interval. Is that okay बेटा? One more thing I want to tell. उसके बाद next topic हम कल करेंगे. Then we'll like finish this chapter. Last note is sometimes when your sample is very big, when your sample is very big, again कि कितना big, right? तो जनरली हम यही कहते हैं कि अगर आपका n greater than equal to 30 है, उस केस में आपने क्या करना है. You can always, even if sigma is not given, you can approximate s with sigma. Okay, so you will have x bar minus z alpha by 2 s by square root of n, x bar plus z alpha by 2 s by square root of n. But this thing you cannot do in the last question क्योंकि इसमें सिर्फ 7 सैंपल्स हैं. जब सैंपल साइज आपका मोर देन 30 है उस केस में आप ये कर सकते हो, right? It is called concept of large sample confidence interval. This is called concept of, obviously errors आएंगी, accuracy कम हो जाएगी, but still you can go for this, but not in the last example. वहां पे सिर्फ 7 सैंपल्स हैं. Okay, so when your sample size is more than 30, you can approximate s with sigma. Okay, इसका मतलब you can assume कि मुझे सिग्मा पता है. जब सिग्मा आपको पता है then you can go for z distribution. Okay बेटा, but when n is less than 30 you cannot assume that कि आपको सिग्मा पता है and you cannot, मतलब कर फिर भी सकते हो but उसमें error जो आएगा that will be very large. उससे आपका सारा एनालिसिस गलत हो सकता है. Okay, this is called concept of a large sample confidence interval. बस सिंपल सी बात है कि अगर आपका सैंपल बहुत लार्ज है देन यू कैन ऑलवेज अप्रोक्सीमेट योर सिग्मा विद s, that is your population variance with your sample variance. Okay, so ये क्वेश्चन है बेटा. SAT scores of a random sample of 500 students has sample mean equal to 501 and standard deviation equal to 112. Find a 99% confidence interval. कैसे होगा बेटा ये बताइए. अब क्योंकि सैंपल साइज इज टू बिग 500, so I can, sample size is too big, therefore I can assume that sigma is approximately equal to s, which is 112, right? Therefore 99% confidence interval क्या हो जाएगा, that will be x bar minus z alpha by 2 sigma 1 by 2 by square root of n, which is square root of 500, to x bar plus z alpha by 2 112 divided by square root of 5. ओके, सो ये आपका आ जाएगा x बार इज 501 माइनस z, ये आ गया आपका 0.0005, ठीक है, 112 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 500 x बार प्लस z 0.0005
5112 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके बेटा, सो ये वैल्यू टेबल से देख लेना. तो आंसर विल बी 488.1 513.9. और कैसे कर सकते हैं इसको? टी भी लगा सकते हो. ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, उससे कैलकुलेट करके देखना क्या आ रहा है. ठीक है, उसमें आपका एक्चुअली क्या है कि देन यू हैव टू गो फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 409 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना. टेबल पता नहीं वहां तक बना है कि नहीं. कैन यू सी द रिस्ट्रिक्शन नाउ, है ना, क्योंकि जब आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि z तो इंडिपेंडेंट है, z का तो एक बार आ गया, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है. z के टेबल से बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि z का पैरामीटर ही नहीं है कोई, उसका जीरो मीन है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है. बट t का पैरामीटर है डिग्री ऑफ फ्रीडम. व्हेन यू हैव वेरी लार्ज सैंपल्स देन यू शुड हैव टेबल फॉर t अप टू दैट लेवल. वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता. Okay, that is why people do like that also. But obviously your sample should be large. किसकी? हाँ बेटा, जो भी चाहिए होगा आपको रिक्वायर्ड वो दिया होगा, बट यू शुड नो हाउ टू सी टेबल्स. ओके, टेबल्स आपको देखने आने चाहिए. जो भी वैल्यूज चाहिए होंगी या हम चाहते हैं कि आप टेबल देखो, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन. ओके, जस्ट ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप.